जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम न बलराम न बलराम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल। श्री नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। Recite Pragati. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakantvitam Cha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Desha Tarine. He Krishna Karuna Sindhu दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। विष्णु ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मोखम करोति वाचाल पंगुम लंगायते गिरियत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरम्। Hare Krishna. So, on behalf of Srila Prabhupada, I welcome you all for this Thursday Sangha. After a very long time, I think last time what we had our session this month of April, and now it's September.
right? So it's a long gap, and if you have heard that last class what I had given, I had mentioned Krishna willing, and at that time I had already mentioned uh, that we were supposed to go for long yatra, Vrindavan, Ayodhya, Haridwar, etc. After a long gap, Krishna willing पता नहीं कब, तो so Krishna will इतने अभी इतना डेट से हो गया, but anyways, let us all try to have it every Friday, every Thursday Sangha. Many things happen. If you see this new place, new background, what you can see, so we have shifted to serve Srila Prabhupada here in Madgaon. I just want to tell you all my family members over here. So now we will begin with Vaishnav Sadachar. I hope you all know, and this manual also we have already shared the PDF, and those of you who are having hard copy also, that's wonderful. So before beginning with this session, as usual, what is it we ask? You know, उन्होंने बोला था ना कि without this answer we are not going to go forward. So anybody, if you all remember after long gap, what is the need for this Vaishnav Sadachar? हमें क्यों लर्न करना है, क्यों सीखना है? Please unmute and can share. Always remember Krishna, never forget Krishna, Mataji. Wonderful. That is the essence. Okay, whatever we are learning, so this is the reason. Okay, so that by हम जो ये आचरण करेंगे वैष्णव सदाचार से हम कभी कृष्ण को भूलेंगे नहीं और कृष्ण को हमेशा याद रखेंगे. That's the essence. And other thing, what is the thing? What we have to remember? This Vaishnav Sadachar implementation is for us and not to judge other devotees. Perfect, Yoshi. Thank you. That's very important. हमें सुन के दूसरों को नहीं बोलना है. And just a brief recap of the last thing what you had done. मतलब जब इन्हें बहुत gap हो गया, तो what we were discussing is कि need of Vaishnav Sadachar क्यों important है. चैतन्य महाप्रभु has stressed, Chadu Swami has stressed. Chaitanya Mahaprabhu instructed Chadu Goswami to give this, train the devotees in this Vaishnav Sadachar. And this Vaishnav Sadachar is like a alankar, as I always say. If a bride is without jewelry, she won't be called as bride, right? So if we call ourselves devotee, Krishna's devotee, want to become Krishna devotee, love Krishna, progress in devotional path, तो अगर ये वैष्णव सदाचार का अगर है ना, if we are not wearing it, then it won't be, pleasing in the eye of Lord. And that's the truth. So that's the reason we are learning this, very important. Yeah? Mahaprabhu himself, who is Krishna, in the mode of Srimati Radharani, has given this. Now all our acharyas stress so much this need of this Vaishnav Sadachar. So it is not just we say, na, kuch nahi, 16, chant 16, don't say follow principle. No, along with this, ये चीजें हैं जो हमें जाननी है, करनी है. This अलंकार, if we are not doing it, करेंगे नहीं तो ये है. So हमें सीखना है. So this is the 20th class what we are having of this Vaishnav Sadachar. It's so easy. If you read that manual, we are discussing from the manual only. Am I audible? Audible, right? Clear, right? Yes, Mataji. Thank you, because I'm having a bad cold. So, anyways, because it's just how many pages? 85 pages. Right, 85 pages. So इसको 85 pages के लिए why it is required 20 classes. 20 classes में खत्म नहीं होगा. And almost every class is 1 hour minimum, right? Sometimes 1.5 hours. Why we are discussing so much in detail? We could have just told him that ये manual ले लो, सीख लो. But it is not like that. कि जो भी what we are discussing, as I had already told you all, कि this is from the experience, this is from the senior devotees जिनसे मैंने सीखा है. Everything cannot mention the things like I was just hearing today one thing from Srila Prabhupada
So there was Srila Prabhupada, his disciple, his name was a very senior devotee, disciple of Srila Prabhupada, Hamsadatta Prabhu, I think, if I'm not wrong. So, he was sharing, Prabhuji was sharing that one time Prabhuji went to the temple, and where he was, he was there as a temple manager or something. He was there in that temple, and Prabhupada went, and Prabhupada saw some rats. उन्होंने चूहे देखे, ओके, रेड चूहे, तो चूहे देखा और immediately Srila Prabhupada said, I think you are not chanting your 16 rounds. Okay. So now when you're hearing is, क्या आपके mind में आएगा? Is there any connection between chanting 16 rounds and सिर में? Can someone please unmute and say something about this? What do you feel? Why Prabhupada must have said this? Anything? Can you guess? Actually, can never guess what Prabhupada can think, But I'll tell you how Prabhupada said. And by the way, this, as I said, this is going to be an interactive session always. We have to discover, to ask. If any questions, we can have in the end. But otherwise, whenever we are discussing kuch puche, so you can please unmute and share. So Hamsadatta Prabhu said, I'm chanting 16 rounds. Why are you asking me like that? I'm not chanting 16 rounds just because there are rats. What is the connection? Right, sahi hai na? Are you all there, right? Okay. So Prabhupada said, see, you are chanting, when you're chanting, so automatically, sincerely chanting, our heart gets purified, okay, of all the anarthas, of all the impurities, isn't it? Holy name is most powerful, right? This is what we have been listening, reading every time. That's why we are chanting, right? It's so powerful, Mahamantra. So we are chanting, and when we are chanting, our heart should get purified slowly from the impurity. And with that pure heart, whenever heart is pure, getting pure, and we are getting that rasa of purity of ras, so then when we see something impure thing, we won't associate with that impure thing. We want to see pure thing. Okay, we want to see the pure thing. So, since you are not chanting properly, maybe you are 16 hours, that means you are not following the instructions what I have given, or you are not chanting it properly attentively. So that's why your heart is not getting purified, it is getting impure, and you are also okay, because since your heart is impure, you are also okay with the outside thing also which is impure. Getting my point? If you are pure, only then, suppose एक रहा चाहता कोई पागल है, और उसके ऊपर किसी ने कीचड़ फेंका, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिकॉज इट्स ऑलरेडी इनटू कीचड़, राइट? किसको फर्क पड़ेगा जो एकदम व्हाइट कपड़े पहन के एकदम शुभ्र गया है और थोड़ा सा भी छींट पड़ी, राइट? तो उनको इधर किसने किया, दे विल फाइट फॉर इट, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? दिस इज Prabhupada said. So since you are not chanting properly, so इसके लिए maybe you are also okay with things externally impure, right? So when I heard this, I was like amazed. मतलब क्या, मतलब Prabhupada सोच सकते हैं ना? How I know he was chanting, but then you see Prabhupada said कि it is very important for a devotee to cleanliness. We have discussed na in this Vaishnava Sadachar class about importance of cleanliness, right? So in that it is not just external, it is internal. ये cleanliness का जो सदाचार है, तो प्रभुपाद ने कैसे बहुत सुंदरता से बताया, देखो, मतलब internal cleanliness also and external cleanliness also. So this is Srila Prabhupada. So ये सब किसी किधर यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो, right? So this is what, that's why we are taking it time. And it is really, अगर सच में डीपली मनन करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, डेफिनेटली कृष्णा विल बी सो प्लीज्ड विद अस. तो ये जो मैनुअल है अभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर इतनी सारी चीजें हैं भूल जाते हैं. एंड अदर थिंग, इट्स नॉट टेम्पल, राइट? तो दिस हमने किया कि हमने दंडवत डालना है टेम्पल में,
बट अगर हम किसी के डिवोटी के घर पे भी गए हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें ऐसी नॉर्मल हैंडशेक, वी शुड ऑफर दंडवत, बिकॉज द जो वैष्णव का जो घर होता है, दिस इज ऑल्सो टेम्पल एंड स्पेशली वेयर देयर आर डीटीज ऑल्टर है, तो हमें इनिशियली दैट ऑल्सो अगेन एज आई सेड कि दिस इज फॉर अस, वी शुड नॉट जज, अगर वेरी सीनियर डिवोटी इज देयर एंड डेफिनेटली तो हमें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो भी हमें डालना है, बट वो भी डालेंगे ऐसे, बट हमें वैसे करना चाहिए कि वी हैव टू बी, इट इज नॉट जस्ट टेम्पल में हर जब वैष्णव जब मन में हम वैष्णव होते हैं क्या और घर पे नहीं होते या रास्ते पे नहीं होते, तो हमें वो समझना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, एंड मे बी ऑन द रोड वी कैन नॉट जस्ट ऑफर दंडवत लाइक दैट, बट एटलीस्ट फ्रॉम मन से वी कैन फोल्ड आवर हैंड्स एंड वी कैन ऑफर दंडवत, या दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, देखो कि वो जो वैष्णव, कैन समवन डूइंग स्क्रीन शेयरिंग और इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सबके पास है क्या मैनुअल सॉफ्ट कॉपी? इज इट रिक्वायर्ड फॉर स्क्रीन शेयरिंग? देन वो इसका रिकॉर्डिंग का इशू हो जाता है ना? यस माता जी, एवरीबॉडी आप स्क्रीन शेयर करें इज बेटर। बट वीडियो को इशू हो जाएगा ना व्हेन अपलोडिंग? हाँ माता जी, थोड़ा सा इशू होगा बट वी कैन मैनेज। नो इशू, इट विल बी स्मॉल ना, वो फेस वो हाँ हाँ तो मत करो, देन यू कैन ठीक है माता जी। शेयर। तो वो वीडियो हम मैनुअल वी कैन शेयर इन द ग्रुप। माता जी वो शेयर किया है ग्रुप में, वी विल शेयर इट अक्रॉस। निरोशा माता जी, ओके 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 माता जी। so there we have we started with this is the importance of Vaishnav Sadachar, then हमने जो हमें कंटेंट्स पढ़ रही हूँ, हमने एटिकेट्स विद इन टेम्पल में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे दंडवत डालना है, एवरीथिंग इतनी डिटेल में। दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड लेट मे बी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज ट्राई टू इफ पॉसिबल ट्राई टू हियर दोस क्लासेस। हमारा प्ले लिस्ट है इस्कॉन मडगांव चैनल में एंड दिस 19 क्लासेस है, दिस इज द 20th क्लास। ओके, तो इफ पॉसिबल प्लीज ट्राई टू हियर वेन एवर यू कैन, इट इज गोइंग टू हेल्प। ओके, देन हमने कैसे हम सबकी जो चीजें हमने महाप्रसादम कैसे लेना है, कैसे आदर करना है, डांस कैसे करना है, प्रीचिंग कैसे करना है, स्पीच, पर्सनल हैबिट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। किचन में प्रसादम को कैसे ऑनर करना है, प्रणाम मंत्र कौन से है, ये सब इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सर्व कैसे करना है प्रसादम, एवरीथिंग इन डिटेल, ये अगर दिस इज लाइक जैम, ये जो बुक है वो जैम है हमारे लिए। फिर हमें वैष्णव सच में कह रहे हैं और बनना है और महाप्रभु की आंखों में मतलब आना है, तो हमें ये बहुत अच्छे से सुनना है, फॉलो करना है। तो हमने प्रसादम के बारे में बहुत चर्चा की थी। Then later on part 4th was dealing with different categories of devotees. तो हमने कैसे, ये बहुत important है। If I think we took lot of time for this session part 4th, कि हमने कैसे दूसरे दूसरे डिवोटीज के पास हमें बिहेव करना है। तो ये अगर ट्राई करना सुनने का फिर से दैट क्लास, वी कैन शेयर दैट लिंक जो पूरा है हमारा प्लेलिस्ट जो है, तो उसमें हमें कैसे हमें डीलिंग करना है स्पिरिचुअल मास्टर के साथ, हमारे जो गुरु होते हैं उनसे हमें कैसे बिहेव करना है, हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, हमारे जो गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स हैं, इक्वल्स रहते हैं हमारे, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है। तो इसके बारे में चर्चा की थी। सो there are many things which I said. तो so लास्ट हमने किया था कि गॉड ब्रदर्स की वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, हमें बहुत केयरिंग, और हमें खुद को हमें दास ऐसे कर रखना है, और वी शुड नॉट बी कॉलिंग अदर, दूसरे को नहीं, मैं कर रहा हूँ मैं दंडवत उसने डालना चाहिए, नहीं, हमने वो एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी ऐसा, दिस इज फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर जजिंग अदर्स। दूसरे क्यों नहीं डाल रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, शुड नॉट बी लाइक दैट। तो वी हैव टू डू इट डिफरेंट वेज इसमें। तो बहुत सारी चीजें हमने की, एंड वी शुड नॉट टेक, एज आई सेड, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स फॉर एवरीबडी, जस्ट बिकॉज एनी डिवोटी जो हमारे साथ बार बार मतलब संपर्क में रहते हैं, और एनी डिवोटी, आई एम सेड एनी एंड एवरी डिवोटी, एंड स्पेशली जो हमारे गुरुजन हैं, वेरी सीनियर डिवोटी, मे बी हमें कृपा मिल रही है कि उनका संग हमें बहुत मिल रहा है, तो बट वी शुड नेवर कंसिडर देम कि लोग ऐसे इक्वल लेवल पे, भले वो हमें कितना भी बोले,
I have some devotees who are very worshipable, very worshipable शिक्षा गुरुज है, but they take ना एकदम ऐसे इतने humble है कि ऐसे, but then I know कि उनका जो महानता है और वो कौन है और it is their greatness they are behaving, but we should never take them for equal level, वो नहीं करना चाहिए. So we have discussed and if possible I request अगर भूल गए हैं तो हम सुन सकते हैं वापस से वो. So now what we will quickly, आज का session actually it's a very light session ऐसे, मतलब पढ़ के भी ठीक है. If I'll just read it out some of the things, ये एक important, उसके बाद में I'll just read and if required to for explanation तो मैं फिर बोलूँगी, otherwise if you have any queries doubt regarding it you can ask. So but ये part मैं थोड़ा discuss करूँगी detail में. So chapter page number 52, E, dealing with ladies. Okay, I hope you all are having that manual. You can send शैलेश प्रभु मैनुअल टू नीलोषा माता जी, उनको है तो आप कोई तो भेज सकता है उनको, so she can refer, otherwise I'll Okay, Mataji. Yes. okay, Yeah, yeah, thank you. So dealing with, yeah, very good. So you can click Mataji and you can download it, chat में है तो आप देख सकते हो. So dealing with ladies, to here part a woman should be given all respect, okay, particularly if she is a Vaishnavi and addressed as such. So यहाँ पे क्या लिखा है कि a woman should be given all respect, जो भी devotee हो non devotee हो, we have to give all respect to women, okay. And if you see our organization, Srila Prabhupada was so much इतना उन्होंने माताजी को केयर दिया है, प्रेम दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, and वो उन्होंने ना, even though there are some younger माताजीज are there, मतलब ladies are there, अभी आदत ही हो गई है. Prabhupada always, he never introduced this term as didi वगैरह, okay. Some organization because they are young and suppose Prabhujis are old, so then they call as name didi वगैरह. But Prabhupada said no, this didi term is not required. You have to start with Matajis. Okay, this is what Prabhuji calling Matajis, matlab gents calling ladies as Matajis. Why? Because as soon as we say that term, one second, Ram, put on this line. So as soon as we say this term, Mataji, right? तो क्या होता है? If see proper, if it's proper, तो देखो. नहीं आप जाके देखो. Okay, so because as soon as we call someone Mataji, तो immediately, this is regarding प्रभुजी इसका बोल रहे, immediately क्या होता है, तो enjoying propensity जो है, वो चली जाती है, at least वो for that time it should be, because you said mother, right? तो कल किसी को माँ बोलेंगे या किसी को माँ बोलेंगे तो उनको जो गलत नजर से देखना है, लस्टी नजर से देखना तो होगा ही नहीं ना, because we are calling someone माँ, mother. So that's why Prabhupada said कि, because we have come across so many people, they tie Rakhis and they call sisters and this, they tie Rakhi and later on, there are illicit relationships happening. That's the truth. Yes. So, other one. Right? So Prabhupada knew this, what is going to happen in future. So that's why Prabhupada term as ladies as Matajis. No didis, no other things. Kuch bhenji, didi, kuch nahi. Only Matajis. Right? So when we call someone Mataji, it is like how much respect we have to give, right, to that to that person. So we have to give that respect. And Hamesha, it is and Prabhupada said it not just any other woman, but if you have Vaishnavi, if she's a devotee, then we have to give her more respect. Okay, that's what Srila Prabhupada said. Second, a brahmachari should see every woman as his mother
and a grahastha should see every woman except his wife as his mother. तो ब्रह्मचारी माने whoever is not married, no, so boy, they should see every woman as the mother with that respect. ऐसा नहीं कि open है तो anything, no, as a mother. And grahastha who's married, so he should see every woman except his own wife as mother. So with that respect, तो फिर टेंशन ही नहीं होगा. One of our 4 regulative principles, what we say, the fourth one क्या है हमारा? What is the fourth? One of the regulative principle, no illicit relationship, right? Okay, so ये बहुत important है. तो इसके लिए प्रपात नहीं होते, तो उन्होंने बोला कि माता जी बोलो, तो वो होगा. बट कलियुगा इज स्टिल कैसे भी कुछ भी हो रहा है, बट वी हैव टू रिमेम्बर व्हेन यू कॉल समवन माता जी, तो वी शुड हैव दैट all respect. And even the lady Mataji also should be behaving accordingly. Okay, as a mother she should not be doing behaving otherwise. See, brahmachari should associate with Matajis only so far as required to execute devotional service and no more. And brahmachari, जो कोई ब्रह्मचारी से उन्होंने माताजी से सिर्फ जो सेवा पर्पस है उसी के लिए करना है, बात करनी है और डील करना है और नो मोर. इसमें ये है कि इट शुड नॉट बी कि व्हाई इट इज बीइंग सेड कि ऐसा नहीं कि माताजी जार एकदम कुछ ऐसे ये होगा और इन ब्रह्मचारी चले जाएंगे, बिकॉज माया इज सो स्ट्रॉन्ग, राइट, कि इफ वी एसोसिएट मोर तो गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए बोला है. बट दैट डजंट मीन कि वी आर ब्रह्मचारी सीइंग माताजी वैष्णवी ऐसे लो लेवल, ये आ गई हम मुझे निकालने, और ऐसे शुड गिव utmost respect. That's why you see in the Vaishnav Sadacha, the first statement was to give utmost respect to a Mataji, and what to speak of Vaishnavi. तो बहुत respect हमें देना है. And we have to be always dealing in a way कि she is a Mataji, तो वो respect, वो जो दायरा होता है, वो etiquette है ना, वो हमें maintain करना चाहिए. Right, so that is there. So that's, we all know Prabhupada always says this, uses an analogy of fire and butter. So butter, in which it is butter Prabhupada calls as woman, and fire, butter is called as Prabhuchis and fire as woman. तो जब fire और butter साथ में आते हैं तो butter melt होना ही है. That's why we have to be careful. So we should not have excessive, हम आते हैं मंदिर में आते हैं, इवन प्रभु जी माता जी बॉयज गर्ल अलग आते हैं. इफ यू सी इन आवर टेम्पल्स कैसे है कि ऑलरेडी हमारा प्रभु जी का अलग रहता है, माता जी का अलग. वी आर देयर, आते हैं, कभी कभी हमें लेट नाइट भी प्रोग्राम होता है हमारा ड्यूरिंग फेस्टिवल. बट इफ यू सी नाउ यू फील सो मच सेफ. आई ऑलवेज से दिस टू गर्ल्स और माता जी, सेफ्टी जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे इस्कॉन कम्युनिटी में आता है, बहुत वहाँ पे इतना शेल्टर फीलिंग होता है. जैसे होते माता जी में डांस करते हैं, प्रभु जी में डांस करते हैं, अलग अलग, राइट. वी आर ऑल्सो हैविंग आवर ओन ब्लिसफुल टाइम इन डिवोशनल सर्विस, एंड प्रभु जी ऑल्सो अलग. तो ऐसा नहीं कि हम साथ में रहते हैं, तो देयर इज नो मिक्सिंग, राइट. सो दैट इज ब्यूटी ऑफ इस्कॉन कम्युनिटी, जो मुझे वन ऑफ द थिंग आई वाज रियली अट्रैक्टेड टू. इतना सिस्टम से कैसे हो सकता है, राइट. So otherwise it is pre-mixing. It's so common anywhere and everywhere. That's why वो illicit relationship होते हैं ऑफिस में, इधर उधर, right? We have to be very careful. हमारा जो है वो have to be very particular. हमारे जो chastity है, जो लिखा है, वो बहुत ही हमें संजोगना है, right? तो हमारा जो भी अभी हम आते हैं मंदिर में, ऐसा नहीं कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, प्रभु जी से कर सकते हैं. देयर इज वे, हम कैसे कर सकते हैं कि देयर शुड बी अलोन, ऐसे नहीं मिलना चाहिए. इफ देयर इज सिंगल प्रभु जी और माता जी, देयर शुड बी समवन अलोंग, इफ यू टू डिस्कस विद सम अबाउट सम प्रोग्राम, तो कोई रहना चाहिए. माता जी को और कोई माता जी होनी चाहिए, और प्रभु जी हुआ तो और कोई प्रभु जी होना चाहिए, वैसे होने चाहिए साथ में. शुड नॉट बी अलोन. तो वैसे डिस्कस कर सकते, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करना चाहिए. तो उसको बोला, वो बहुत फिर ना क्या बोलते हैं उसको, रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं. उससे करके वही लोग इतना जो स्ट्रिक्ट होते हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे, वो
उनको देख के भाग जाते हैं ऐसे, वही लोग फिर बाद में फॉल डाउन होते हैं। दिस इज फॉर बोथ प्रभु जी से माता जी के लिए बोल रहे हैं। तो हमें वो होना चाहिए, अगर भी उसके ऊपर ही फोकस करेंगे, अरे ये देख के तो मैं कर रहा हूँ तो उसको देखना ही है ये ऐसे, तो फिर सेवा कैसे करेंगे। बट सेवा करते हुए हमें रखना चाहिए कि हम साथ में हो जाए, मतलब माता जी और कोई माता जी साथ में होनी चाहिए, आइडियली मैरिड माता जी समथिंग, और प्रभु जी के साथ में भी और कोई रहना चाहिए, एंड देन यू कैन डिस्कस विद द सेवा, दैट्स इट। मोर इम्पोर्टेंटली जो ये चैटिंग वेटिंग का जो कल्चर है वो दैट सी इट इज नॉट, इट इज आइडल दैट कि हमें कि टू हैव अ डिवोशनल पार्टनर ना, डिवोटी पार्टनर फॉर अ गर्ल और बॉय होना चाहिए, मतलब मैरिज के लिए, शादी के लिए। बट टू हैव दैट हमारे जो हमने देखा है कि हमें जो कॉलेज में देखते हैं और ऐसे ऑफिस कल्चर की आके यहाँ पे भी टाइम पास, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बॉयज, लॉट ऑफ गर्ल्स, माता जी प्रभु जी, तो वो मेंटेलिटी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए कि चलेगा एक टाइम पास रिलेशनशिप। नो, इट इज एटलीस्ट बाहर का भी नहीं चलना चाहिए, और यहाँ पे तो मंदिर में तो होना ही नहीं चाहिए। As I said, कि we definitely, it is very nice कि boy Prabhuji and Mataji both are getting married, they would, but it should not be a time pass। यहाँ पे आके लुक आउट नहीं करना चाहिए कि अरे ये देखो, फिर वो जैसे भी चैटिंग करना, उधर मिलना, फिर दूसरा, we should not be doing that, definitely not, that is not acceptable at all। and इसी के लिए हमारा we have a marriage board है, हमारे ISKCON का सब कुछ सिस्टम है। we have a way कि we can approach through कि हमें शादी करना है और through parents, so there is a way हम कैसे करते हैं। but we should not be कि यहाँ पे टाइम पास थोड़ा किया इसके साथ उसके साथ, no, that's not acceptable। and that is why it is very important that हम जितना अगर चैटिंग वेटिंग करने लगे, then a boy, प्रभु जी can also take it in other way, and girl also, माता जी can also take it other way। तो चैटिंग वेटिंग वो they should actually avoid only, and especially late night chats और वगैरह। कुछ है तो फोन करके बात करके खत्म करो, अगर सेवा रिलेटेड कुछ है तो। बट वो बहुत जरूरी है हमारा बिहेवियर कैसा, और हम लोग देखते हैं when we wear this कंठी माला, when we wear this तिलक, right, हम आते हैं मंदिर में, इवन that's why I said कि अगर हम तिलक के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो भले ही हम अगर हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं तिलक का, तो वी शुड नॉट बी वेरी, तिलक की ग्लोरीज बहुत है वैष्णव तिलक की, बट अगर हमारा व्यवहार ऐसे नहीं है बाहर जाके, तो हमने वो तिलक नहीं धारण करना चाहिए। देन दे विल से, दे विल नॉट कॉल यू, अरे नो श्रद्धा यू हैव डन दिस, आपने ऐसा किया, आप गलत हो, नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे, अरे आप तो डिवोटी हो, ISKCON के डिवोटी है ना, आप ऐसे करते हो। देखा द डिफरेंस। अभी क्या हो जाता है, दे आर ब्लेमिंग यू आर नॉट यू एज सच। जैसे श्रद्धा को नहीं बोलेंगे, they बोले कि ISKCON, प्रभुपाद, कृष्णा डिवोटी, वैष्णव, उसके बारे में आता है। एंड उसमें क्या होता है, तो हम ब्लास्फेमी करते हैं, अलोंग विद दैट वी ऑल्सो डू एंटी प्रीचिंग। समझ में आ गया ना। दैट्स व्हाई आई सेड कि तिलक पहन रहे हैं, वी हैव टू बी, तिलक और कंठी धारण करें, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमें मारे और हम बैठ के मारो मारो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट जो गलत है वो गलत है। बट जस्ट ऐसे सिंपली वी शुड नॉट बी डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ओके, बट टू डिफेंड वी शुड बी डिफेंडिंग अगर कुछ है तो। बट ऐसे ही हमारा आचरण, किसी को चीट करना, वो तिलक वगैरह धारण करके नहीं करना है हमें। दैट इज नॉट दिस वैष्णव, उसको वैष्णव बोल ही नहीं सकते। वो उसको ना, जैसे हम बोलते हैं, उसने बोला था ना हमने ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी दैट डे कि वी शुड बी रीडिंग दैट चैप्टर ऑफ शमंतका चला। सम ऑफ द डिवोटीज हैड टोल्ड कि वहां पे ना एक था, पौंड्रक बन गया, पौंड्रक एक करके था, तो वो कृष्ण बन के आए, कृष्ण की तरह, मतलब विष्णु 4 हाथ लगाए ऐसे, मतलब 2 हाथ ऐसे लगाए। तो फिर हम डिवोटी के कार में पौंड्रक जैसे बनते हैं, फिर वो मार देते कृष्ण। तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए। वी शुड बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू हैव गुड आचरण, नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो फिर तिलक अगर नहीं होता, तिलक हम एटलीस्ट मंदिर में लगा के आ सकते हैं, दैट इट इज फाइन। तो यस, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अभी जब गड़बड़ हो जाए कुछ ना ऐसे, सपोज अ गर्ल एंड बॉय और प्रभु जी और माता जी ISKCON से तिलक वगैरह डाल के और ऐसे कुछ गड़बड़ किया, तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? दे वोंट से सो एंड सो बॉय एंड गर्ल हैड डन समथिंग, दे वोंट टेक, दे विल से अरे ISKCON डिवोटी ने ऐसे किया, ISKCON वाले ऐसे बोलते, इतना ऐसे बोलते हैं कि हमारा अलग है, प्रभु जी से अलग, माता जी से अलग, इतना कुछ बोलते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट है, और देखो क्या कर रहे हैं।
तो वैसे तो हमें हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम कौन है यहाँ पे, अभी आप जो भी हो, आप लोग यहाँ पे है, वो नए लोग पर्सन नहीं हो, जिनको कुछ नहीं, दिस इज नॉट फॉर न्यू पर्सन। एबीसीडी वालों के लिए, मतलब जो स्टार्टिंग वाले के लिए नहीं है ये, इट्स ऑल फॉर डिवोटीज, राइट? अब यू ऑल आर प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट सभी लोग, मोस्ट ऑफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटेड, ऐसे हो। तो ये सब चीजें बहुत मायने करती है। ओके, सटल थिंग हमें नहीं लगता है। तो ये बहुत केयरफुल होना चाहिए, हम कैसे करते हैं, हम आचरण कैसे करते हैं, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हमारे हमें कुछ बोलने से कृष्णा को ये होगा ऐसे, बट देन व्हाई टू डू इट, व्हाई वी हैव टू बी दैट पर्सन टू डू एंटी प्रीचिंग, राइट? हमें नहीं बनना है वो पर्सन। नहीं, किसी को अगर भक्त नहीं कर सकते, एक किसी को भक्त बनाने के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। देखो हमारा जीएसटी चालू है, क्या है, 1 साल लगता है किसी को, 200 लोग में से 30 लोग डिवोटी बनते हैं। इतना मतलब 30 बने हैं इस बार, इतना तकलीफ लगती है यार। कुछ सब छोड़ छाड़ के अभी देयर कंटिन्यूस प्रोग्राम, डिवोटी केयर, ये करना वो करना, कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस, कितना कुकिंग और क्या करना, उसी में रहते हैं हम 1 साल में। तो 1 साल में करीब 200 में से 30 हमें डिवोटीज मिले, जो आई एम वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी ऑफ यू हियर राइट नाउ, राइट? तो वैसे एक डिवोटी को एक डिवोटी बनाने के लिए कितना परिश्रम होता है। हमारे स्नेहाचार्य डिवोटीज बोलते हैं कि ना, एक डिवोटी बनाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड चाहिए, इतना खून, एक इतना लगता है, एनर्जी एंड पूरा दिन रात एक करना पड़ता है एक डिवोटी बनाने के लिए। तो फिर अगर हम किसी को नहीं बना सकते, तो हम किसी को, हमें मीडियम नहीं बनना चाहिए कि अभक्त बनाने के लिए, राइट? एंड वी हैव टू रिमेम्बर दिस इज अ बिग परंपरा जो रिस्पॉन्स है हमारे हैं। ओके, ठीक है। सो आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस सो मच अबाउट इट, तो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, हमारा आतंत्रता, और इसलिए डीलिंग विथ लेडीज या डीलिंग विथ प्रभु जी, तो इसलिए मैं माता जी, तो मैं खुद से बोल सकती हूँ, प्रभु जी से बोलते नहीं, क्योंकि यार कुछ लेडी ऑफेंड हो जाए तो नहीं, मैं वो बोली फॉर लेडीज ऑल्सो। हमारा भी आचरण होता है माता जी का, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कि सो दैट अदर जेंडर इट इज नॉट गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, बी इट ब्रह्मचारी, बी इट गृहस्थ, कोई भी। इफ यू सी ना, मतलब इस्कॉन में तो मतलब 0.1% ही ऐसे ब्रह्मचारी है, बंदे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं कोई गृहस्थ हो, ब्रह्म, कलयुग इज वेरी बैड जो चल रहा है अभी, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। और हमने as Mataji's, we also have to, our responsibility is to protect other ashram, because we are called as mothers, right? हम मदर हमें संबोधन करते, तो इट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे को, जो हमारे बच्चे, हमें मदर बोलेगी तो हमारे बच्चे हो गए ना, बड़े भी हो गए या छोटे भी हो गए, बच्चे हो गए ना, तो हमारा भी धर्म है कि हमें दूसरे का आश्रम, बीट ब्रह्मचारी, बीट गृहस्था, टू प्रोटेक्ट, यस। सो बहुत इम्पोर्टेंट, हमें ऐसा बिहेव नहीं करना है जिससे वो हो जाए, यस। प्रपात से, जो प्रपात ने बोला है सही बोला है, फायर एंड बटर कम्स टुगेदर, बटर हैज टू मेल्ट, राइट? तो आना है तो देयर इज अ वे कि हम साथ में आके 2-3 डिवोटीज आके मिलके हम डिस्कस करते हैं, दैट इट इज फाइन, दैट इट इज नो इशू। ऐसा नहीं हमने बोला कि सेवा करनी नहीं है, सिर्फ प्रभु जी से करेंगे अलग, माता जी से अलग करेंगे, प्रैक्टिकल है ही नहीं है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर हम ऐसे सोच में करेंगे, अभी आज माता जी सेवा करेंगे, कोई प्रभु से बात नहीं करेंगे, या प्रभु जी बोलेंगे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हूँ, वैसे प्रभु जी करेंगे, तो होगा ही नहीं, हम डिससर्विस करेंगे प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद ने नहीं किया ना, प्रभुपाद ने प्रीच बोथ प्रभु जी माता जी। इनफैक्ट वी नो दैट, वी से इट, यू नो, कि प्रभुपाद व्हेन ही वाज इन वेस्ट, ही हिमसेल्फ, कुछ आता नहीं था, उन्होंने खुद अपने को साड़ी पहना के दिखाया, कि माता जी को सिखाया कि कैसे साड़ी पहनना है। वहां पे तो यूट्यूब नहीं था। ये कंपैशन है हमारे श्रीला प्रभुपाद का। सो वी शुड नॉट बी एकदम, ये नहीं बनना चाहिए कि एकदम रिजिड हो गए, अरे नहीं बनेंगे, ऐसे नहीं होगी। जो इतना करते हैं ना, वही गिर जाते हैं। तो हमें ऐसे डिवोटी, क्या फर्स्ट क्या है भगवत गीता का जो टीचिंग है, वी आर नॉट बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पिरिट सोल? हमारा धर्म क्या है? टू बिकम इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड द डिवोटीज। तो हमें उसके, जब किसी को देंगे तो उसके अंदर जो सोल है परमात्मा, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, नॉट दिस, राइट? तो ये बहुत है। ये कैसे होगा? जब हम सिंसियरली चैंटिंग करेंगे हरे हरे नाम का,
जप करेंगे, सेवा करेंगे, श्रीमद् भागवतम का पठन करेंगे, हियरिंग करेंगे, ये सब जब करेंगे, हम भक्तों का संग लेंगे, राइट भक्तों एसोसिएशन लेंगे, तो फिर हमें वो स्ट्रेंथ मिलेगा कि हम वो दूसरे में अवगुण ना देखें, और हमें प्रोटेक्शन मिलेगा कि अरे कुछ होगा तो अरे नहीं कुछ नहीं होगा, नो वी कैन कंट्रोल, हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है, लॉर्ड ऋषिकेश, उनका जब हम सरेंडर लेंगे, शेल्टर लेंगे, तो ही वो कर सकते, नहीं तो हमारा तो बस में है ही नहीं सेंसेस कंट्रोल करना। तो वी हैव टू सिंसियरली कंटिन्यूअसली प्रे एंड डू आवर थिंग, द लॉर्ड ऋषिकेश विल टेक केयर ऑफ आवर सेंसेस, तो फिर इधर उधर नहीं भटकेंगे वो। ओके, यस, so I think that's enough, right? And if this any of you are having any doubt, you can ask. We'll go with the next topic, dealing with guest. कुछ अगर किसी को डाउट कुछ है, क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, डीलिंग विद ऑपोजिट जेंडर, डीलिंग विद माताजीज। और एक बात है, अभी माताजीज बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है कि दे आर वेरी, जैसे बोलते भी हैं कि मतलब दे आर नॉट, ऑफ कोर्स दे आर इंटेलिजेंट एज सच, बट ऐसे कि मे बी समथिंग दे आर नॉट दैट मच, जो टेक्निकलिटी से है और उसमें है वो नहीं है। जैसे आई रिमेम्बर वन टाइम, नो आई जस्ट से वन वेरी वंडरफुल डिवोटी, हमारी ब्रह्मचारी थी हमारे, तो सो ही वाज देयर एंड देन ही वाज टॉकिंग विद, हमारा रिट्रीट था, तो किसी बात कर रहे थे, बट माताजी वाज नॉट अवेयर अबाउट ये स्पीकर का कनेक्शन वगैरह। हाँ, तो फिर तो और कोई एक दूसरे साइड में एक डिवोटी थे, तो वो ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन वो माताजी को, अरे और फिर वो माताजी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है, कैसे करेंगे, दैट्स ठीक है, तो उसको पता नहीं है, सिंपल माताजी, राइट। तो फिर बोलने लगी उनको, इसको इस जो डिवोटी है, दूसरा डिवोटी, उनको बहुत गुस्सा है, क्या ये छोटी चीजें इनको नहीं आती है, ये छोटी सी प्लग लगाने या सेट करने में क्या नहीं आता इन लोगों को, बोलने लगे। Then and that ब्रह्मचारी, I'll say धीरे कृष्ण रूप प्रभु, तो इन्होंने सुना और इन्होंने उनको इतना डांटा, हाउ डेयर यू कैन से समथिंग टू माताजी, ऐसे माताजी को ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, दे आर आवर वर्शिपेबल माताजी, उनकी वजह से हम हैं, उनके बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग एंड ऑल, वी हैव दैट प्रोटेक्शन। भले इनको ये नहीं आता, बट जिनको उनको जो आता है, द सिंपलिसिटी, दैट डिवोशन व्हाट दे आर हैविंग, उसका आपको है ही नहीं, उसका कंपैरिजन ही है नहीं जो डिवोशन उनका है, बिकॉज लॉर्ड हैज मेड them like that, with that simplicity of heart and love and devotion, वो वैसे soft और वैसे मे बी उनका इंटेलेक्ट वैसा नहीं है जैसे ये है, बट उनका जो इमोशनल IQ है और ये वो बहुत ज्यादा है उनसे, both are different, we have to respect, we should not be saying कि अभी इसमें माताजी नहीं आने चाहिए, अरे हमें कैसे बोल सकते लेस इंटेलिजेंट वगैरह, ऐसे है ना हमारे स्टूडेंट, नहीं। तो भगवान ने हमें एक अलग तरह से बनाया और प्रभु जी को अलग तरह से बनाया। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम प्रभु जी एंड प्रभु जी शुड नॉट ट्राई टू बिकम माताजी। जो हमारा जो पता है स्वभाव, हम वैसे हमें एक्सेप्ट करना है खुद को, एंड इफ यू एक्सेप्ट एंड डू इट एंड परफेक्शन, ओके। इसलिए सबसे महानतम भक्त कौन है भगवान के? गोपीज, इजंट इट, राइट? तो वैसे तो दैट स्टोरी, बहुत डांटा उनको, बोला कि कैसे बोल सकते हैं ऐसे, माफी मांगो, कभी आप माताजी के बारे में ऐसे नहीं बनना चाहिए, एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। ये चीज मुझे प्रभु जी ने नहीं बोली, ये चीज मुझे उस प्रभु जी ने बोली ना, फिर सो नाइस। देखो, तो ये होना चाहिए, शुड नॉट बी फेमिनिज्म, और इसमें ये नहीं। देखो उन्होंने कैसे, जब वो मोमेंट ही सॉ दिस प्रभु जी सेइंग समथिंग अबाउट माता जी, तो इमीडिएटली उन्होंने कैसे करेक्ट किया। उन्होंने नहीं बोला अरे ये भी ऐसे है, उनके साथ हमें शामिल नहीं, राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड नॉट जस्ट माता जी, सबको, हमें वैष्णव को हमें बहुत रिस्पेक्ट करना है, राइट? तो दे आर डियर टू कृष्णा। यस, तो एनीथिंग इन दिस रिगार्ड इफ कोई है तो आप पूछ सकते हो बाद में, ठीक है? आई टेक दिस डीलिंग विद गेस्ट, आई जस्ट रीड इट आउट, इट्स वेरी सिंपल, तो मैं ये रीड करती हूँ। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। तो डीलिंग विद गेस्ट, सो संस्कृत में गेस्ट को क्या बोलते हैं? अतिथि। अतिथि, अतिथि माने जिसकी तिथि नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड, कभी भी टाइम पे आता है। हमारे इसमें क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। हाँ? तो उसको जब गेस्ट आते हैं हमारे घर पे और मंदिर में, तो हमें कैसे डील करना है? दिस इज अबाउट टेम्पल एंड ऑल्सो होम।
ठीक है, तो हमें कैसे डील करना है. शुड नॉट बी जस्ट रैंडमली आओ क्या आ जाओ बैठे ऐसे. देयर इज अ वे. विल जस्ट क्विकली रीड इट आउट एंड आई जस्ट बीच में रुकूंगी. अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में. सो डीलिंग विद गेस्ट. When guests come to our temple and homes, it is a Vaishnava etiquette to treat them with great respect and love. इसलिए ना अतिथि देवो भव, अतिथि को देवों की तरह से प्रार्थना रिस्पेक्ट देना चाहिए. They should be welcomed with sweet words, a seat, water and prasadam according to our means. जो कोई आता है तो उनको हैप्पीनेस से बोला आओ आओ प्लीज, इधर वेरी हैप्पी टू है प्रभु माता जी करके. फिर आने के बाद उनको बुलाना चाहिए अंदर, उनको फिर बिठाना चाहिए. फिर देन जो भी एटलीस्ट पानी तो दे सकते हैं, और कुछ भी हमारे घर पे हो सके हमारे पॉसिबल, वी हैव टू ऑफर देम, बट वी हैव टू ऑफर देम स्वीट वर्ड्स. इसमें हमें आप देखोगे तो अपेंडिक्स 7 एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन पेज नंबर 56. तो इसके बारे में डिटेल में 56 में पेज नंबर 56 में दिया है, एक्सप्लेन किया. ओके, तो ये मैं रीड करती हूँ. आई थिंक फॉर दिस टुडे सेशन विल कंप्लीट दिस एंड फिर नेक्स्ट सेशन वी कैन गो विद एड्रेसिंग वैष्णव. ठीक है. सो इसमें है रिसेप्शन ऑफ गेस्ट, अतिथि सेवा इन द टेम्पल और एट होम. The Sanskrit word Atithi means not scheduled. An unscheduled or unexpected guest is considered a representative of the Supreme Lord. Since his arriving unannounced is just what the Lord might do to test his devotee and see how ready he is to serve him in any situation. Can you imagine what is written here? How big is Atithi? This is a very beautiful statement when I read. Atithi माने क्यों not scheduled. Krishna भी, why it is called Atithi Devo Bhava? Because the Supreme Lord also can come, it is representative of Supreme Lord, because Lord also can come anytime. हमारे जब टाइम आएगा तो are we ready? चलो अभी, कौन है, रचिता माता जी, चलो अभी टाइम आ गया गोलोक वृंदावन का, राइट. तो अभी रेडी फॉर इट. और क्या बोलेंगे, नहीं नहीं प्रभु अभी नहीं, हमें बहुत टाइम है, अब मुझे ये करना है वो करना है क्या करना है, राइट. सो वी हैव टू बी, हमारा मतलब हमें स्लोली आगे हमें ऐसे हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाने की. जैसे लास्ट मोमेंट आ गए भगवान, तो वी आर रेडी. कृष्णा तो भगवान से और आपके चरणों के साथ कुछ नहीं चाहिए. वी आर रेडी कृष्णा, हो जाने दो, सब लोग कर लेंगे. जैसे इनका जब हो गया परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज when he was cursed for that he will die in 7 days 7 nights, what he did immediately without a second, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली जो भी अपना था वो सब कुछ उन्होंने दे दिया अपने बच्चों को. और उन्होंने क्या किया, भगवान और भक्तों का शरण लिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव श्रीमद् भागवतम हियर, राइट. और कंटिन्यूअसली वो श्रीमद् भागवत उनके लिए. तो ऐसे तो एकदम क्षणिक, तो परीक्षित महाराज के कैसे पता चल गया कि हो गया, डेथ आने वाली है, इमीडिएटली कृष्ण का शरण. यस. तो ये अतिथि वैसे मतलब कृष्ण आएंगे तो हम क्या करेंगे, अभी रेडी और बोले कि टाटा बाय बाय कृष्ण बाद में आओ, अभी नहीं, लेटर, अभी नहीं, हाँ हम क्या करेंगे. तो इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट, प्लीज रीड इट अगेन. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग वन शुड सर्व द गेस्ट, कि हम कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव करें. जो उनमें भी ऐसी विदाउट ये बोल रहे आए हैं, तो बट वी हैव टू सर्व दैट गेस्ट. The Lord's temple, whether open to the public or in one's home, one should be a place where visitors can take part in temple activities as far as possible. तो हम जो मंदिर है जहाँ पे वो जो जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी आ सकता है और फिर भगवान के जो हियरिंग रीडिंग कर सकता है, वर्शिप कर सकता है, भगवान को मेडिटेट कर सकता है. दैट शुड बी द प्लेस. तो कृष्णा in the International Society for Krishna Consciousness, the proper reception of guests is very important, since the society is a preaching mission. हमारा preaching mission है ना, हमारा ऐसा नहीं आए और बैठे और चले जाए, थोड़ा चरणामृत दिया और भेजे तीर्थ बाकी जो मंदिर में होता है, ऐसा नहीं है. हमारा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन विच मतलब हम वो ये श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का स्टडी करके हम जो ज्ञान मिलता है कि हु आर वी, हमारा सैटरडे का टॉपिक है हु एम आई अभी, राइट. तो कौन है हम,
और हमारा क्या रोल है, हमारा क्या सबक, क्या हमारी ड्यूटी है, ये सब इस नॉलेज वी आर गेटिंग इट। एंड कैसे हमारा ये जो जीवन है हमें हमारा परफेक्ट करना है, ये हमें ये मंदिरों से पता चलता है ना। दिस इज अ वे। इसलिए हमारा बड़ा मंदिर बिठाया, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है भगवान का, हो गया, आके जब देखे गए। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हमारा की प्रचार, इसलिए तो कोई बोले ना, जो भी कोई आता है, ये जैसे हमारे डिवोटी कह रहे हैं ना, अभी करना है, अभी हमारा है ना, प्रभु जी बोल रहे हैं कि अभी सबको, कोई भी आ रहा है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, टॉक टू देम, इंस्पायर देम। ये अगर नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। जैसे हम कौन है, वी आर सर्वेंट। हमारे मास्टर कौन है, कौन है? कृष्णा, राइट? कृष्णा इज अवर मास्टर, और हम उनके कौन है? सर्वेंट। तो जो भी उस मंदिर में आता है, उस दरवाजे के अंदर से आता है, तो वो कौन है? हमारा सर्वेंट? नो, he or she is Krishna's guest, right? और हम कौन है? कृष्णा सर्वेंट। तो हमारा क्या ड्यूटी होना चाहिए? हमारे मास्टर जो है वो कब खुश हो जाएंगे, क्या करने से सर्वेंट हम खुश हो जाएंगे? जब उनके जो गेस्ट आते हैं, अगर उन्होंने उनको हमने अच्छे से सर्व किया, तो क्या होगा? हमारे जो मास्टर है कृष्ण, राधा कृष्ण, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और जब हमारे मास्टर खुश हो जाएंगे तो सर्वेंट को टेंशन ही नहीं, बोनस सब कुछ मिल जाएगा हमें। दिवाली बोनस आता है ना, अभी आने वाला है ऐसे, तो हमें तो एकदम अनलिमिटेड भगवान का बोनस मिलेगा, राइट? तो वी हैव टू, हमारा यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि क्या मिलेगा, ऐसे नहीं। बट हमारा क्या उद्देश्य है कि जस्ट वट एवर वी आर डूइंग इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, राइट? और लॉर्ड कैसे खुश हो जाएंगे? जब जो उनके गेस्ट है उनको जब हम जैसे अच्छे से उनको सर्व करेंगे। कैसे सर्व करेंगे? अच्छे से उनको अच्छे से बोलेंगे, कनेक्ट करेंगे, उनको अच्छे से कृष्ण के बारे में बताएंगे, व्हाटएवर वी हैव वी कैन टेल देम, गिविंग देम प्रसादम, कीर्तन। ये जब करेंगे तो फिर क्या होंगे? भगवान खुश हो जाएंगे। तो जो भी गेस्ट आता है हमारे मंदिरों में, उनको हमारी प्राइम ड्यूटी है, अगर हम खुद को डिवोटी बोल रहे हैं, हम सर्वेंट बोल रहे हैं, ऑल ऑफ अस ओवर हियर, आप जहाँ भी कौन से भी सेंटर में हो, अभी आई कैन सी सो मेनी, मापसा के है या पुंडा के है, मुंबई के है या बाहर के है, जो भी है, पुणे के है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज है, गुजरात से है, सबसे है डिवोटीज, राइट? तो हमारी क्या प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए कि व्हाटएवर यथाशक्ति, ऐसा नहीं प्रीचिंग माने व्यासन पे बैठेंगे तो ही प्रचार होगा। नो, व्हाटएवर वी हैव अंडरस्टूड, व्हाटएवर वी हैव बेनिफिटेड, वी हैव टू जस्ट शेयर विद दैट पर्सन। That's very important. And we have to give now, we have to be available. ऐसा नहीं कि वो आते हैं, जो भी आते हैं सुनने के लिए वगैरह, but उनको वो समझ में नहीं आएगा पहले। But what they will remember, any of you, any of us, including me, remember your first lecture, what you had heard in ISKCON. वही सुना होगा, कुछ तो याद होगा। Maybe you are very much श्रुतिधर, but पूरा लेक्चर जो 1 घंटे का लेक्चर जो था, आपको याद है क्या? किसी को याद है? डिट्टो बोलो मुझे, हाथ रेस करके। याद है किसी को? पॉसिबल ही नहीं। बट हमें क्या याद होगा कि हाँ, मैं आई हैड गॉन टू टेम्पल फर्स्ट टाइम, बट वो दैट माता जी, अभी हमें याद नहीं वो कौन है, बट वो बोलेंगे दैट माता जी और दैट प्रभु जी हैड कम एंड स्माइल टू मी, और पूछा कि आप कौन हो, कैसे हो, प्लीज प्रसाद ले लो। इजंट इट? तो हाउ द डिवोटीज हैव बिहेव्ड विद अस ड्यूरिंग आवर फर्स्ट मीटिंग वगैरह इनिशियल, वो हमें इतना याद रखेगा, बाकी वो लेक्चर वगैरह याद नहीं रहता है। और इमेजिन अलग सिचुएशन जहाँ पे अगर हम वो आए, लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बट कोई डिवोटी ने, जो हम डिवोटी, उन्होंने उनसे बात ही नहीं की, किसी ने आया, अरे चलो ऐसे, हाँ खा लो, ऐसे हाँ ले लो, ऐसे, और एक गलत बोला, अरे इधर क्यों बैठे, इधर कैसे किया, दंडवत डालना नहीं आता, ये करना नहीं आता। अगर ऐसा किसी को बोला होता हमें, तो हम क्या आज इधर होते? टेल मी, नहीं होते ना यहाँ पे। भले लेक्चर बेस्ट था, बोला स्पीकर ने बेस्ट लेक्चर दिया, बट हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला। जो वहाँ पे डिवोटी थे, जो कृष्ण के सर्वेंट थे, जैसे हम सब है ट्राई कर रहे हैं, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट हम चले जाते। हम सब भी जो है, इट इज नॉट दैट हम हाँ बोलेंगे हाँ डिवोशन है, भक्ति है हमारी, मैं 25 माला करती हूँ और 32 माला जो भी करते हैं, 64 जो भी है, बट हम किसके लिए यहाँ पे हो है? क्योंकि हमारा कोई तो जैसे डिवोटी एक्सपीरियंस जो हमारा अच्छा, किसी ने बात किया, स्माइल किया और बोला, हमें सिखाया कुछ प्रेम से, इसके लिए हम इधर है आज भक्ति में। इसके लिए जो भी हम कंठी धारण किया, इनिशिएशन हुआ,
ब्राह्मण इनिशिएशन जो सन्यास जो भी कुछ है, बट विद दैट वन थिंग, अगर वो नहीं होता, कोई बात ही नहीं करता हमसे, तो हम कहाँ होते भक्ति में लेते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लगता नहीं कि हम हमारी एक किसी की बात आ रही है, जस्ट डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, और कृष्णा विल टेक केयर। ये एक स्टेटमेंट से हमें पता नहीं है किसको कितना फायदा होगा, उसको वही जरूरत होती होगी वो, राइट। हमें पता, इसलिए बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे बात अच्छी आप तो भी, और प्रभु जी ना मुझे जब हाउ यू केम टू कृष्ण कॉन्शियस होता है तो बोलते हैं ना, कभी कभी मैं आई थी और तभी आपने ऐसे किया, तो आपने मुझे एक फूल दिया भगवान का, और आपने ऐसे बोला, मुझे अभी याद ही नहीं रहता, मतलब मेरा बोल याद ही नहीं रहता है, बट दैट पर्सन रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो वो वैल्यू करते हैं, एंड देन इट मैटर्स। तो इसके लिए हमें हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इट इज नॉट जस्ट ओनली कि हमारे खुद की साधना से, खुद की भक्ति से हम आज इधर है, कंठी है, जो भी कुछ भी है, हमारा दीक्षा हो गया कुछ, नो, बिकॉज अगर ये हमारे लोग नहीं रहते, हमारे डिवोटीज हमारा साथ नहीं देते, तो हम नहीं होते, हम छोड़ देते वो मंदिर। अगर इतना हमें मिला है, तो अभी हमारा ड्यूटी है कि हमें दूसरों को देना है। एंड इट इज इजी, क्या हमें जाके उनको बैठ के लेक्चर नहीं देना है, हमें क्या, हमें सिर्फ बात करनी है, हमारा थोड़ा कंफर्ट जोन से। हमारे ये माता जी मेरी फेवरेट है, और इस प्रभु जी के लिए मेरी फेवरेट फ्रेंड है, और फेवरेट फ्रेंड ना प्रभु जी माता जी, इसके लिए मैं आती हूँ मंदिर में, बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंड है और जो भी है, तो उससे बात करना है। बट नो, उससे बात करेंगे तो हम क्या होगा, सेल्फिश हो जाएंगे। हमें क्या करना है, जो हमें मिला है, वी शुड ट्राई टू शेयर इट विद द अदर पर्सन। जो कृष्ण के गेस्ट आए हैं ना, तो उनको देना है वो हम, अगर वो हम देंगे तो इट विल परफेक्ट, देयर विल मेनी मोर, बड़ा बड़ा कम्युनिटी हो जाएगी, कृष्ण बहुत, राधा कृष्ण बहुत खुश हो जाएंगे। और जब समय आएगा ना, देन कृष्णा फिर वो जब आएगा ना, ऐसे क्या क्या किया है, ठीक है 64 में किया, निर्जल एकादशी रखा, ये कुछ आएगा, पर उससे ज्यादा कृष्णा उसको वेटेज किसको देंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला हमें, प्रीचिंग मोमेंट, राइट। प्रभुपाद के लिए हमें सबको वो पीछे का बैकडोर से एंट्री है, और प्रभुपाद क्या बोलते हैं हमें, 64 उन्होंने 16 क्यों, बिकॉज कंटिन्यूस सेवा करनी है तभी। तो प्रभुपाद बोलेंगे, यार इसने ना ये जब आए थे ड्यूटी, उनसे बहुत उसका केयर लिया, प्रेम दिया, इसके लिए इसको दे दो। कृष्णा बिकॉज ऑफ प्रभुपाद ये हमें आगे लेके जाएंगे, एंट्री देंगे। दैट्स ट्रू, ये ऐसे बोलने की बातें नहीं है। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज, ये जो चीज हमेशा ज्ञात रखनी चाहिए, एंड वी हैव टू सर्व कृष्णास गेस्ट, जो भी वहां पे आता है, वी शुड, हमें बहुत इच्छा है उनको थोड़ा बोले कि प्रभु जी महाराज मैं आपके पास थोड़े टाइम में बात करती हूँ, मैं अभी जो कि वो तो ज्यादा देर नहीं रहते ना मंदिरों में नए लोग, उनसे अच्छे से, जो जब भी वो है अच्छे से बात करो, उनको हेल्प करो, बोलो, इंस्पायर करो, डिस्कस करो, एंड देन लेटर वंस दे हैव गॉन, अपने जो सखी या सखा जो है उनसे बात करो अच्छे से, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्ट रीड दिस। सो प्रभुपाद ने बोला ना, जो ब्रैकेट में है देखो, एज फॉलोअर्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद, the founder acharya of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, we should consider any guest in the temple to be his guest. हो गया क्लियर, नॉट जस्ट कृष्णा, मतलब ये बैकडोर का एंट्री, प्रभुपाद ने बोला खुश हो गए तो हो गया। यस, वी शुड नॉट बी, all of us we should be very careful कि जो भी आते हैं, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनको इतने अच्छे से उनको ट्रीट करना है कि so that they will continue and they also will get mercy of Shri Radha Krishna, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, राइट। तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें नहीं आदत है, बट फिर भी हमें करना चाहिए क्योंकि हमारा मास्टर उससे खुश हो जाएगा। यस, सो यस, तो प्रॉपर, इसलिए हमारे गोपीनाथ मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में हमारा एक ये है डिपार्टमेंट, रिसेप्शन, गेस्ट रिसेप्शन के, और उनका कैसे वो डिवोटी सिर्फ क्या करते हैं, फुल टाइम से डिवोटी को कैसे नए लोग कोई आए तो उनको कैसे उनका केयर लेना और क्या देना, उसमें रहता है। सो आई जस्ट रीड इट, हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर सकते हैं, बट ये एसेंस है कि हम यहाँ पे आज नहीं होते, मैं यहाँ पे नहीं बैठती, आप लोग यहाँ पे नहीं बैठते, अगर हमारे जीवन में डिवोटी का हाथ नहीं होता।
कृपाद आचार्य है ही, पर अगर डिवोटी हमारे पास अच्छा बिहेव नहीं करते, बोलते करते, हम कोई भी इधर नहीं होता. तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. यस. So proper reception of a guest can make the difference between a person coming once to the temple and never returning, or becoming a regular visitor and ultimately becoming a devotee of Krishna. We should actually bold करके डालना चाहिए हमारे इसमें. ये हमारे मंदिर में एक्चुअली लगाती हूँ, कुछ तो प्रिंट करके. हाँ, शैलेश प्रभु ये सेंटेंस लगाते हैं हमारे लिए. हाँ, कैसे हम उसको गेस्ट को लेते हैं ना, सो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है कि वो पर्सन फिर से आएगा कि नहीं आएगा. हम कैसे आचरण करेंगे वैसे वो आएगा फिर से या कभी भी नहीं आएगा. राइट. रेगुलर विजिटर्स, इनवाइटेड guests, life members, visiting Vaishnavas, relatives of Vaishnavas, all should be treated in such a way that they will feel comfortable and want to come again. Yes, ऐसा होना चाहिए. हमने सबने साथ में प्रयास करना चाहिए. Every devotee should learn how to take care of guests. देखो, every devotee लिखा है, every, not just Manoj Prabhu, not just Bhakti Mataji, not just Nilosha Mataji, not Shilpa Mataji, Rekha Mataji. Only this many I can see on my screen. बाकी सब भी जो 60-70 devotee है वो. तो every devotee should learn how to take care of guests. But temple devotees who regularly worship the deity, अभी देखो, should especially be expert in this matter. सभी लोगों ने करना है. And what to talk about the devotees who are, जो मंदिर में जब deity worship करते हैं, उन्होंने भी क्या करना चाहिए, अच्छे से ये करना है. अभी कैसे होता है, अभी should not कभी, we should not be judging. अरे हमें ऐसे करते नहीं, because we should also understand so many things. We should see for ourselves कि हमने ये करना चाहिए. We should not see अरे दूसरे devotee ने मुझे किया ही नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए. ये तो इसका एसेंस है ना ये वैष्णव सदाचार का. हमने दूसरों को करना है, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है. It can be many different reasons because that devotee can be engaged in different services और इसलिए वो नहीं कर पाए ऐसे. Right? It is not possible ना, इसलिए तो हमने सबने मिलके करना. अगर मैंने ही और प्रभु जी ने एक ही मिलने करके किया, पॉसिबल है ही नहीं. 200 लोगों को हम कैसे बात करेंगे आधे घंटे में. Right? But each and every devotee over here tries to talk, divide करेंगे तो easy हो जाएगा वो. Right? क्यों नहीं बोलेंगे माता जी करना, प्रभु जी करना, सबने मिलके किया तो easy हो जाएगा ना वो. Yes? तो जो यहाँ पे जो deity worship करते हैं उन्होंने भी क्या करना चाहिए, ये केयर करना चाहिए. लिखा है देखो, be expert in this matter for they directly represent the proprietor of the temple. Even the most first class opulent deity worship will fail to attract the guest if the temple residents neglect him. क्या स्टेटमेंट देखिए. अगर बहुत अच्छे से श्रृंगार किया है भगवान का, एकदम बेस्ट डेकोरेशन कुछ किया, बट अगर जो कोई आते हैं गेस्ट उनको एकदम निग्लेक्ट किया, अरे बोले चलो हट हट ऐसे किया, उन्होंने देखा ही नहीं है, चलो जाओ कोई आए ऐसे, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं. बोला फेल्ड. इतना बड़ा भगवान का वर्शिप करके भी अगर हम भगवान के गेस्ट को अगर हम सही आचरण से नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा. Proper reception of guests is the special duty of the grihastha. Okay. If the grihastha does not receive an unexpected guest warmly, no matter who he is, he commits a great sin. जो भी आता है प्रयास करना है कि हमें उनको अच्छे से हमने उनको घर पे बिठाए और बोले जितना हो सके. Not only grihasthas, however, but everyone in every ashrama and varna should properly receive guests. सबका धर्म है. The main elements in receiving guests are the offering of proper respect and conveniences, including food and water, a place to sit, kind words, any services for the comfort to the guest, such as bathing facility and a place to rest. This is for those who are coming to stay in the temple वगैरह तभी. और घर पे जो आते हैं उनको जो प्रॉपर जितना हो सके, हमारे जितना, ऐसे नहीं कि उनको ऐसे बहुत एकदम कुछ है नहीं लोन निकाल के कुछ करेंगे, वैसा नहीं है. तो whatever way हमारे पास जो बेस्ट है, what we have to serve them. When the guest first arrives, you should go out to meet him. Okay. And when the visitor departs, you should accompany him at least out of the premises or the yard.
कोई आता है तो उनको वेलकम करने के लिए जाना है, और जब वो जाता है तो उनको आप बैठ के और अंदर आप जाओ ऐसे नहीं, आप हमें दरवाजे के अंदर जाना चाहिए उनको टाटा बाय बाय करने के लिए अच्छे से। ओके, अभी इसमें विल जस्ट रीड दिस पैरा एंड विल कंप्लीट। सो प्रॉपर बिहेवियर एज अ गेस्ट हम नेक्स्ट सेशन के लिए लेते हैं, ठीक है, ये अभी कंप्लीट कर लेते हैं। Offering simple or elaborate worship. For practical purposes, you may worship the guest with two articles, sandalwood paste and flowers, or garlands, or a seat and water for washing the feet. Actually ये है, जो कोई आता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवोटीज, तो हमें वैसे वैसे उनको ये करना है कि जैसे हमारे मंदिरों में इफ यू सी अवर गुरु पूजा के लिए ये जो चंदन लगाते हैं ना सर के ऊपर वेलकमिंग, तो वो डिवोटीज को वर्शिप करते हैं वैसे, जो चंदन भगवान को अर्पण किया है वो लगाते हैं फिर वैसे। नहीं तो कुछ फूलों का हार डालते हैं गेस्ट रिसेप्शन वैसे भगवान का, बट हम ऐसे नहीं, फूलों का हार भगवान का ऑफर किया हुआ डालते हैं बैठने के लिए। और चरण, वैष्णव के चरण धोते हैं, ऐसे होना चाहिए। हमें वैष्णव की ह्यूमिलिटी वो वैष्णव अलाउ नहीं करता, बट एक्चुअली वैष्णव एक भजन है ना, वैष्णव पद धूली वैष्णव, जो वैष्णव हम भक्ति में कैसे फास्ट ग्रो हो सकते हैं, उसमें एक भजन है, आचार्य बोलते हैं, स्टार्टेड विद दैट ना, आचार्यों का वैष्णव भजन। तो वैष्णव पद धूली, वैष्णव का जो चरण रज है वो इतना पावरफुल है, वैष्णव के पैर जो धोए हुए पानी है वो इतना पावरफुल है, और वैष्णव का जो उच्छिष्ट है, जो उन्होंने प्रसाद खाया हुआ जो उच्छिष्ट बचा है, वो तीन ये जो चीजें हैं वो इतना पावरफुल है कि वो किसी ने खाया लिया तो फिर क्या होगा, उनको उनकी गुण आ जाएंगे, भक्ति में वो फास्ट ग्रो करेंगे। इसलिए वो बोलते हैं वैष्णव अपने अभी तो आप देखते नहीं होंगे कि वैष्णव हम ऐसे मतलब तुलसी माता जी चरण धुल सकते हैं, राइट। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? Yes. यस, थैंक यू। सो इसलिए वो भजन, अभी नेक्स्ट भजन ऑफ द मंथ हम ये करेंगे, वैष्णव पद धूली, वैष्णव वो लेंगे हम भजन, वेरी नाइस भजन इट इज। सो बाकी है गिविंग गिफ्ट एज सच एज गोल्ड क्लॉथ गोल्ड मनी और ग्रेन्स। अभी देखो ये है, but जो भी मतलब कोई जाता है, कोई आया घर पे और उनको कुछ हमें एज पर और कुछ तो देना होता है, अगर फर्स्ट टाइम आया कुछ तो अपने हिसाब से अगर है किसी को तो कुछ दे सकते हैं। अभी तो गोल्ड कितना है, बट जो भी कुछ दे सकते हैं, प्रसाद तो दे दो और कुछ दे सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छे से वर्ड्स अच्छे से कह, वन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स बाय राइजिंग फ्रॉम अ सिटिंग पोजिशन, आइडेंटिफाइंग oneself and offering obeisances. Worship and gifts are reserved for the spiritual master. तो ये हमें पता है ना, जब बलराम जी हमारे जब वो भ्रमण कर रहे थे तो रोमहर्षण सुत, राइट, he was sitting ना, he was giving was actually वो क्लास दे रहे थे, बट जब बलराम जी आए तो बलराम जी कौन है, आदि गुरु है, और सब बाकी ने दंडवत डाला, पर इन्होंने बिकॉज वो व्यासासन भी उठे, एक्चुअली दंडवत नहीं डालना चाहिए, मतलब उसके ऊपर से रहते हैं ना, बट ये जो स्तोत्र है वो ये है ना बलराम जी, वो आदि गुरु का सूत्र ये है, तो शुड बी एक्चुअली ऑफरिंग दंडवत, बट इसलिए नहीं किया। तो बलराम जी ने क्या किया, तिनके का एक घास निकाला, घास का तिनका निकाला और उनको ऐसे मारा और उनका गर्दन कट, राइट। तो वैसे, बट वही बलराम जी जब कलयुग में आए, ये तो द्वापर की बात है, बट जो वही बलराम जी जब वो द्वापर में आए तो उन्होंने क्या किया, वही वो जो तिनके से मारा था उन्होंने रोमहर्षण सूत्र को, तो तिनका अपने दांत के अंदर बीच में डाल के वो गिड़गिड़ाने लगे सबसे कि प्लीज कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम लो। दैट इज राइट। कलयुग में ऐसा नहीं होगा तो सबको मारना पड़ता, हम सब इधर होते ही नहीं, आप लोग नहीं, मेरी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु करके आए और वो बोले कि जस्ट नाम ले लो, नाम लेने से ही आप भगवत धाम जाएंगे, इतना इजी है, सरल है हमारे कलयुग में। यस, तो हमें जब हमारे गुरुजन आते तो इमीडिएटली हमें वो दंडवत डालना है उनको वैसे, और वर्शिप इन गिफ्ट। फिर आरती भी आपने देखा प्रभात की आरती वगैरह, फिर अगर वो सन्यासी लेवल है और बड़े हैं तो हम उनको हम आरती कर सकते हैं जब वेलकमिंग करते समय,
और जो कोई अगर आप दे सकते तो किसको गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, अगर बड़े जन है आप दे पाती हो तो। ये ब्रैकेट वाला जो है उसमें हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द पंचरात्रिका विधि वन शोज रिस्पेक्ट बाय फर्स्ट राइजिंग फ्रॉम वन सीट व्हेन अ सुपीरियर अप्रोचेस। ओके, तो आए तो ऐसे बैठना भी, कोई आए तो एटलीस्ट ऐसे नहीं कि कोई आते रहेगा लेक्चर में तो उठना है, बट एटलीस्ट वो दिखाना, तो एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए कि ओके मेरे सीनियर आए हैं। वैसे ऐसे बार बार उठने गए तो लेक्चर ये होगा, एंड दे आल्सो वोंट लाइक इट, बट एटलीस्ट वी हैव टू एक्नॉलेज व्हेन अ सीनियर कम्स, वैसे हमारे जो वरिष्ठ है वो। तो सेकंड, आइडेंटिफाइंग वनसेल्फ बाय नेम एंड ऑफरिंग ग्रीटिंग। ओके, नेम से, अरे माता जी नो, अरे मनीषा माता जी, और है ना आप बहुत अच्छे हो, ऐसे आई आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम सो ब्लेस्ड, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं अगर व्हाट हेल्प हैव डन और आई है इसके लिए। और थर्ड, ऑफरिंग प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंसेस विद 5 or 8 लिम्स, और ऑफरिंग दंडवत बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचांग या अष्टांग, प्रभु जी स्ट्रेट दंडवत और पंचांग दंडवत माता जी तो हम कर सकते हैं। So this is regarding our how we have to deal with the guest. वो कितना है रिसेप्शन, कितना सोचा है इतना हो सकता है, so many things are in detail, और इससे हमें डरना नहीं चाहिए, इसमें बहुत समझना कि अरे हमने क्या कर नहीं रहे थे, अभी सीखना चाहिए, बिकॉज ऑफ कृष्णा's mercy we are getting all these things, so we can learn this। हम नहीं बोल सकते हमेशा हम ऐसे ही करते थे ऐसे ही करेंगे, no, we should try our best, right? Ultimately it is how we do it ना, वो भगवान के लिए, आपके हमारे और भगवान के बीच में है, not to show others, right? Lord is Paramatma, is saying everything. Yes, so we will stop here for today, and for the next Thursday class, definitely Krishna willing, let's all pray कि we continue these classes. Yes, we can start, we can take this proper behavior as a guest, and there are other things हम लेंगे। इसके बाद में if we see हमारे बहुत अच्छा पार्ट है लेटर, साधना हमारी कैसे हो, पार्ट 5 साधना हमारी जपा के बारे में है, यू नो, इट्स वेरी नाइस सेशन। ओके, तो आई थिंक इस साल में हम प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का, इससे पहले ही डेफिनेटली। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और queries, doubts regarding what we have discussed today regarding this, you can ask. Otherwise, you may leave. So I'll just, before concluding, I'll just offer Vaishnava Pranam because other devotees may leave. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhyo patitana pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर जी की जय, श्रील प्रपाद की जय। Very questions or things you can ask. Thank you very very much for joining.